Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Iram Sadiq and I am working as assistant professor at Department of Psychiatry and Behavioral Sciences. Today we will discuss common ethical omissions. What are the common ethical omissions? Basically, while doing medical practice, doctors usually omit two ethical omissions. Like one is the informed consent and the second one is the confidentiality. The two commonest ethical concerns for a physician are consent and confidentiality. Yet there are two paramount norms that are most often ignored by physicians. So what is consent? Consent is omitted by most of doctors on account of two reasons. Why we omit usually consent? Basically, consent, as you all know, it is the permission to do the procedure or to do the process of even communication, or to carry out a session between patient and doctor. So this is the agreement basically between doctor and the patient. Why we omit this? Firstly, the paternalistic attitude of doctors, as doctors think that they know what is the best interest for the patient, so they think they didn't need to ask from the patient, or they didn't need to take permission from the patient. So their paternalistic attitude is the one of the reasons. Secondly, the common folly of thinking that an illiterate or an ignorant patient may miss on a cure. Like most of the population what we are dealing, they are not so much literate person, or they are not so much aware of their treatment. But secondly, we think that first we think that we know best for the patient, and second, usually physicians think that the patient is not able to take the decision. So this second folly thinking that also lead to a medical lead to omit the consent of the patient. If crucial time is wasted in obtaining his or her approval, that the patient may say no after listening hazards of the procedure. And confidentiality of the patient is regularly compromised when we share the data of the patient's condition and clinical details with his relatives, friends and well-wishers without the patient's prior permission. आप सबके लिए मैं एक बता दूं चीज़ कि सबसे अहम बात, आप लोग ऑस्पिस के स्टेशन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो यूजुअली जब करते हैं स्टार्ट, तो आप लोग एक ही बात बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जी आपकी बात सीगाए राज में रखी जाएगी. क्या है ये सीगाए राज? दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी. बेसिकली जो इंफॉर्मेशन पेशेंट आपको देता है, यू आर सपोज टू बी कॉन्फिडेंशियल, टू कीप दैट इंफॉर्मेशन टू ओनली योरसेल्फ, और उसके इवन रिलेटिव से भी यू कांट शेयर. अगर आप किसी फ्रेंड से भी किसी पेशेंट का डाटा शेयर करते हो तो आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रहे हो. आई विल डिस्कस कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां हम ब्रीच कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी. सो द प्रैक्टिस ऑफ अंडरटेकिंग प्रोसीजर्स, इंटरवेंशंस एंड हेल्थ डिसीजंस with informed consent as well as sharing a patient's clinical data with anybody without his or her prior permissions are unethical. So these two things are very much important. So what is informed consent? Basically, consent is an agreement of the patient to an examination, procedure, treatment or intervention. It can be given orally by saying yes, no, by signing a form, or a written statement like what usually we do during anesthesia or during a surgical procedure, or simply agreeing by a gesture, like you want to do an abdominal examination and you ask the patient that can you do your abdominal examination, and the patient just give you a gesture of yes. So this is the way we can take informed consent. Offering to pull up the shirt for letting the doctor examine the abdomen, it must always be obtained in advance. In order for the consent to be valid, the patient should be competent, that is, should have the capacity to make a decision, free of the defect of mind or judgment, or not to be a minor. So the thing is कि informed consent जब हमने लेना है तो आपको पता हो कि आपका पेशेंट उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, लाइक मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. अगर वो इस किस्म की किसी चीज़ का है तो उस पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लागू नहीं होगा.
अगर वो कुछ सिवियर मेंटल इलनेस और डिसेबिलिटी का शिकार है जिसकी वजह से ही कांट टेक डिसीजन, तो भी उस पे अप्लाई नहीं होता। और माइनर अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स must do it freely and voluntarily, must be given options to choose from and not fear a rejection or a neglect by the doctor in case he or she refuses to agree. कोई भी आपने प्रोसीजर करना है पेशेंट का, आप उसको सारे प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, आप उनको सब उसकी जो डिटेल्स देंगे। और पेशेंट कैन रिजेक्ट अ प्रोसीजर अगर वो नेसेसरी भी है उसके लिए, इफ यू डिडंट वांट टू डू what we are doing, we are maintaining his autonomy. Autonomy आपको पता है मेडिकल पिलर्स में से सबसे अहम है। What is autonomy? कि हम उसको उसकी आइडेंटिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हैं, उसकी डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। हमने जबरदस्ती कोई प्रोसीजर नहीं करना और ना पेशेंट को इस फियर में एक्सेप्टेंस दिलवानी है कि जी अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो हमने पेशेंट ही नहीं देखना होगा। The patient must be offered all the information that a reasonable professional should have. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए आपने जितनी हमने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की है प्रीवियसली, उसके बेस पे आपने उसको रीजनेबल इंफॉर्मेशन देनी है ताकि वो अपने डिसीजन को कर सकें। एंड एज मच एज द पेशेंट वुड लाइक टू इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज द रिस्क इन्वॉल्व, likely success rate, the side effects, and a comparison with other opinions. The doctor must also ensure that the information has been clearly understood. The whole process of seeking informed consent must, however, be made after building a rapport and a trusting relationship with the patient where he or she sees the doctor as caring, competent, and reliable. So you see, we can't do informed consent in the first setting. It is a thing which need a rapport building between patient and doctor. We need a relationship, trustful relationship between doctor and patient. So what are the exceptions जहाँ पे informed consent हम कर सकते हैं omit? क्या है वो exceptions क्या है? Patient brought into the emergency accident department and are unconscious alone and require life-saving measures. So what is the thing कि यहाँ पे आपने informed consent नहीं ले सकते आपको जरूरत नहीं है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, उसका लाइफ सेविंग मेजर्स करने हैं आपने। सो डायरेक्टली यू कैन डू व्हाटएवर इज गुड फॉर द पेशेंट। चाइल्ड अंडर 16 years, इन सम कंट्रीज देयर इज 18 years ऑफ एज माइनर की जो होती है, तो उसमें आपने कंसेंट जो होना है वो पेरेंट्स से लेना है या केयर टेकर से या केयर गिवर से। Those who with impaired capacity to give consent, like any psychiatric mental disability. So consent is a reflection of a norm of autonomy highlighted above as the foremost pillar of the medical ethics. If you people see in your book, there is a mnemonic giving in the informed consent at the name of BRAINS, BRAINS, BRAINS. So BRAINS की अगर आप mnemonics देखो, B for benefit, R for risk, A for alternatives, right? ये क्या है? ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब भी आपने इसका ऑस्पिस्टेशन करना, आपने जहन में रखनी है निमोनिक, आपके पेशेंट ने यही सवाल पूछते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स, मुझे क्या फवाइद है इस प्रोसीजर के, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व, क्या क्या रिस्क हैं इस प्रोसीजर के अगर मैं ना करवाऊँ, ऑल्टरनेटिव के अगर मैं प्रोसीजर ना करवाऊँ इसकी जगह कोई और ऐसा ऑल्टरनेटिव मैसर है मेरे लिए। आई इंट्यूटिव, इंट्यूशन पेशेंट की भी होती है, डॉक्टर की भी होती है। लाइक अगर आपकी बुक्स में 6 प्रोसीजर्स दिए गए हैं एक कोलिसिस्टेक्टमी के, तो आपके पेशेंट पे कौन सा सेट बैठता है, ये एक इंट्यूशन होगी आपके, ये हर पर्सन में, हर फिजिशियन में होती है। तो आपने एक इंट्यूशन पेशेंट की भी देखनी है और अपनी भी, ठीक है। वो पूछेगा आपसे कि डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है, ठीक है। सो BRAIN, नथिंगनेस के अगर मैं कुछ भी नहीं करवाता, एंड एस एक्सक्यूज मी कि मुझे टाइम दें थोड़ा सा, मैं आपको सोच के जो है वो आंसर बैक करता हूँ। सो दिस इज द निमोनिक फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और ये आपने याद भी करना है, आपके ऑस्पीज में ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड एक्सेप्शन वेयर वी कैन not used to take informed consent, and now the section is confidentiality. So what is the confidentiality and when we can breach it? It is a common law duty of a doctor to respect the confidence that a patient has in him.
Doctors are expected to preserve absolute confidentiality on all that they know about their patient, not only during the treatment but also after it and even after the patient's death. It is a means of expressing respect for patient's right to the privacy and helps the patient speak freely to the doctor. So confidentiality is the foremost part in the traditional Hippocratic oath that all doctors are committed to. आपको याद होगा कि आप अपने जो हिपोक्रेटिक ऑथ लेते हैं जब आप डिग्री कंप्लीट करके अपनी फाइनल ईयर कम्युनिकेशन में आप अपना राइट हैंड उठा के आप कभी उस ओथ को पढ़ें, उसके अंदर ये लिखा हुआ है क्लियर कट कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट देंगे, आप इंफॉर्मेशन को अपने तक रखेंगे विदाउट पेशेंट की जो permission के you will not breach the confidentiality. A doctor's registration with PMDC, which is now PMC, can be cancelled and misconduct charges in the court of law can be pressed if he is found responsible for an unauthorized breach in the confidentiality. अच्छा, अब कौन सी ऐसी हमारे पास जगह है जहां हम ब्रीच कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को, तोड़ सकते हैं हम उसकी मालूमात का, क्या कौन से ऐसे 6 कंडीशंस हैं आप लोगों ने याद रखनी है। ये आपके ऑस्पिस में भी आती हैं, आपके एग्जाम में भी आती हैं। व्हाट आर दीज 6 कंडीशन? व्हेन अ पेशेंट ऑथराइजेस टू डू so in situations such as while seeking employment, medical report or opinion for the employer or a report prepared for a second opinion. बच्चों आपको अंदाजा होगा मेडिकल जॉब्स में भी, इवन गवर्नमेंट जॉब्स में मेडिकल करवाना होता है और समटाइम एम्प्लॉयमेंट में आपको एक ओपिनियन चाहिए होती है साइकाइट्रिक या फिजिकल हेल्थ से मुतल्लिक। ये वो जगह हैं जहाँ पे हमें अगर कोई डिपार्टमेंट किसी पेशेंट को भेजता है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, इसका ज़हनी मुआयना करके बताएं, तो वी आर सपोज टू सी द पेशेंट, उसके बारे में जो उसकी इलनेस है वो हमने लिख के उस डिपार्टमेंट को भिजवा देनी होती है। सो दिस इज द वन कंडीशन जहाँ पे वो इस पर्पस के लिए आता है कि हमने उसकी ओपिनियन देनी है, मेडिको लीगल केस है, तो यहाँ पे आप ब्रीच कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। The patient has the right to ask for a copy of the report and must always be explained the content of the report and should always understand what he has consented to. कॉन्फिडेंशियलिटी का मैं आपको बता दूं कि आप अपने पेशेंट का इवन डायग्नोसिस भी उसकी इजाज़त के बगैर उसकी फैमिली को नहीं बता सकते। यू आर नॉट सपोज टू। अगर पेशेंट इजाज़त देता है आइडियली तो यही होता है, बट यूजुअली इन आवर सोसाइटी एक तो फैमिली साथ में होती है, दूसरा हमारी सोसाइटी में कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट्स भी इतनी केयर नहीं करते इस चीज़ की, लेकिन हमें उनको ये चीज़ बतानी चाहिए। समटाइम्स पेशेंट बहुत ज़्यादा आपके साथ कॉन्फिडेंशियल इश्यूज लेके आते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली को पता ना चले, तो आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। लाइक सेकेंड कंडीशन क्या है? वाइल इंफॉर्मेशन इज टू बी शेयर्ड विद इन द हेल्थ केयर टीम। आपको पता होगा कि आपके इंस्टीट्यूशंस में जो है वो CPC होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं हमारी। यहाँ पे हम पेशेंट की आइडेंटिटी जो होती है समटाइम्स उसको रख लेते हैं, अदरवाइज हम पेशेंट से इंफॉर्मेशन जो ली होती है उसके पूछ के हम उसको डिस्क्लोज करते हैं कि हमने आपका केस जो है CPC में प्रेजेंट करना है। अगर आप माइंड ना करें तो हम आपकी सारी इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर्स टीम के साथ शेयर कर लें, और पेशेंट यूजुअली दे आर एग्री टू गिव द कंसेंट। सो जहाँ अपने हेल्थ केयर टीम ने करना है वहाँ पे भी आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकते हैं। व्हेन द डिस्क्लोजर इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। लाइक बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट इज दिस कि आपके पास कोई पेशेंट आया है और वो सेक्सुअल अब्यूज का आजकल बहुत ज़्यादा आप लोगों को अंदाजा होना है, सेक्सुअल अब्यूज बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, और यूजुअली कोई फैमिली का पर्सन नहीं होता, नियर डियर वन ही होते हैं जो अब्यूज कर रहे होते हैं बच्चों को। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है और वो अब्यूज़र फैमिली में मौजूद है और पेशेंट जो है वो विलिंग नहीं है, डर रही है, फीमेल है या बच्चा है या बच्ची है, वो डर रही है कि मुझे मेरे पेरेंट्स को भी ना बताएं, या मेरे यूजुअली हम ऐसे केसेस देखते हैं और वो थोड़ा सा होते हैं कि जी आप डिस्क्लोज नहीं करिएगा। यहाँ पे यू कैन डिस्क्लोज बिकॉज अब्यूज़र इज देयर, द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ अगेन फॉर अब्यूज। तो ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट के लिए होता है कि हमने उसको बचाना है। वी हैव टू सेव दैट चाइल्ड और दैट गर्ल और दैट पर्सन फ्रॉम द अब्यूज़र आइदर सेक्सुअली और फिजिकली। सो दिस इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट कि हमने उसको डिस्क्लोज करना है, उनको बताना है। अगर पेशेंट नहीं भी विलिंग तो भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। Or in case of the terminally ill who does not want to know the prognosis fully and doctor feels the family or next of kin must be made aware of the outcome. When the disclosure is in the public interest,
मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज कोविड नाउअडेज। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, कोई ऐसी डिजीज है जो फैल रही है, अगर आप नहीं डिस्क्लोज करोगे, लाइक आपके पास एक पेशेंट आया कोविड के, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो हेल्थ अथॉरिटी को, तो क्या होगा, वो फैला देगा, ठीक है ना। तो बहुत सी डिजीजेज ऐसी होती हैं जिनमें हमने हेल्थ अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है कि पेशेंट जो है वो इस डिजीज का शिकार है। पोलियो के केसेस जैसे आते हैं, तो जो ऐसी हमारी डिजीजेज हैं वहाँ पे हमने हेल्थ अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करना है, फैमिली को भी इन्फॉर्म करना है, और ताकि उसकी बचाव किया जाए। दिस इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। और सेकंड ये समटाइम्स एपिलेप्सी के पेशेंट्स और कोई ऐसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जैसे कलर ब्लाइंडनेस, वो हमसे मांग लेती हैं ओपिनियन, तो यहाँ पे भी आपने डिस्क्लोज करना है कि क्योंकि वो भी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है कि एक पेशेंट जो एपिलेप्टिक है उसकी भी, आपको मैं बता दूं, लिमिटेड होती है लाइसेंसिंग। इवन मेनिया का पेशेंट है, एपिलेप्सी का पेशेंट है, और अगर कोई है इसका कलर ब्लाइंडनेस का, तो आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हो। Or the patient is HIV positive and the wife is at risk. In all such circumstances, the patient should first be persuaded and counseled to report the matter himself. हाँ, इन मामलात में पहले पेशेंट से कहीं, अगर पेशेंट नहीं भी कर सकता तो यू हैव अथॉरिटी टू ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी। इन केस ऑफ अ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट एज इन मैटर्स ऑफ लॉज ऑन पब्लिक हेल्थ एंड द कंट्रोल ऑफ द डिजीज सच एज कॉलरा, स्मॉलपॉक्स, प्लेग एंड वेनरल डिजीज। सो लेजिस्लेटिव, जैसे कोविड की भी लेजिस्लेशन है बाकायदा, मतलब ये लॉ में है कि आपने इसको कोई कंटेजियस डिजीजेस के बारे में, ये सारी कंटेजियस डिजीजेस है जिनके बारे में बात की गई है, डेंगू हो गया, इन चीजों को डिस्क्लोज करना, इन्फॉर्म करना इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक फॉर रिसर्च पर्पसेस बट ओनली एज anonymous data and that is not possible after consent of the patient। क्या है जी, रिसर्चेस में आप देखते हैं कि जो है ऑनलाइन डाटा जो है वो हम करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, उसमें पेशेंट का नाम आप एनोनिमस रखें, लेकिन डाटा आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्चेस ऐसी होती है ना कि आप बहुत सारे पेशेंट्स जो उनकी डिजीज चीज जो है वो उसको डिस्क्लोज करते हैं, तो इन पर्पसेस में भी आप भी ब्रीच कर सकते हैं, लेकिन आप नाम एनोनिमस रख सकते हैं। So what we have discussed? We have discussed the confidentiality and consent. This is all about today lecture. Hope you will like it.